Hello guys, so today we are going to start with this chapter probability. Probability is basically a branch of mathematics which helps you quantify uncertainty. Sounds cool, right? The word probability basically means chance. Let's understand it in a little more detail. So what will be the chance that sun rises from east? It's going to be 100%, right? So the probability for this will be 1. So what will be the chance that sun rises from west? It will be 0%, right? So its probability is going to be 0. And what will be chance that if you toss a coin and you get head? It will be half. It will be 50% chance that you will get head, right? So it's 1 by 2. And what will be the chance if I take out the green ball from here? So there are basically 9 balls out there and there are 8 balls which are green. So 8 out of 9. Am I right? So what will be the chance that you will be winning a lottery ticket? Since there are so many participants in a lottery ticket, there will be very less chance, right? 1 out of, let's say, 1 lakh. So can you see there are certain events which are very sure, you are very sure about. There are very certain events. This is, you are very sure that it's not going to happen. You are sure that half of the time it's going to happen, half of the time it's not going to happen. In this event, like you are not very sure, but you are like almost sure about it. So it's very highly likely that you will be getting a green ball. And this is very less chance you have that you will be winning this lottery. So we have divided events into this phase. Like there are certain events which are impossible, there are certain events which are certain, there are events which are unlikely, and there are events which are likely to happen, and there are certain events which are equally likely. Our probability lies between these two extremes, and we will be quantifying how unlikely, how much likely it is, and we'll be using various tools that we are going to study here in this chapter. There are certain definitions that you need to learn before doing that. Like for example, sample space. So what is sample space? It is basically the set of all outcomes that you are going to do in your experiment. For example, let's suppose this lottery case that you've taken. Like there are so many participants in lottery tickets. Like for example, there are 1 lakh participants. So the sample space for that event will be 1 lakh. And you are measuring how likely it is that you will be winning that lottery ticket. So this will be your event. ओके सो प्रोबेबिलिटी अगर हम बहुत ही बेसिक वे में देखें तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है? फेवरेबल बाय टोटल. अगर ये हेड और टेल वाला ले लें, अगर ये कॉइन वाला ले लें, तो इसमें फेवरेबल क्या था? फेवरेबल वॉज कि तुम्हारा हेड आए. सो एक चीज़ फेवरेबल थी और टोटल आउटकम्स कितने थे कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. सो टोटल वॉज 2. दैट्स वाई यू गॉट 1 by 2. ओके with the very first topic of our probability, which is conditional probability. अब कंडीशन क्या? कंडीशन ये कि हमें एक इवेंट ऐसा दिया गया है जो ऑलरेडी हो चुका है और हमें उस इवेंट के बेसिस पे एक नए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसके बेसिस पे मुझे एक दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो कि मैंने एक डाइस थ्रो करा, उसके 6 एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 उसके सैम्पल स्पेस में. अब मैंने बोला कि एक इवेंट ई है विच इज़ गेटिंग अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 3. अब क्या होगा उस इवेंट ई के आउटकम्स क्या होंगे कि 4 5 और 6, विच वॉज वेरी ईजी. और हम ये भी निकाल सकते हैं इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6. इट वॉज अ केक वॉक. अगर मैंने बोला कि एक इवेंट एफ भी है विच इज़ गेटिंग अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3, वो क्या होगा? 3 और 6, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेंगे 2/6. बट अगर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बोला कि मुझे एक नंबर ऐसा चाहिए जो 3 का मल्टीपल तो हो बट शर्त ये है कि वो 3 से बड़ा हो. आई एम अगेन रिपीटिंग, 3 का मल्टीपल हो बट शर्त ये है कि वो 3 से बड़ा हो. अब मेरे दिमाग में ये आएगा कि हाँ, सबसे पहले इसने बोला कि वो 3 से तो बड़ा होना ही चाहिए. मेरे दिमाग में आएगा कि 3 से बड़े होते हैं ये नंबर्स 4 5 6. अब इनमें से मुझे देखना है कि 3 का मल्टीपल कौन सा है. ये 6 वाला है. तो मैंने क्या करा, 6 वाला एक ही नंबर था तो 1/3. मैंने क्या करा, एक्चुअल में क्या करा, इसको अगर हम बैक रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो मैंने ये देखा कि ये था इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ. ई और एफ का जो इंटरसेक्शन था, और ये था नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ई में थे. तो मैंने एक्चुअल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई करा. क्या निकालने के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट कि ई ऑलरेडी हो चुका है. ये होता है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका. अब इसका फॉर्मूला एक बार हम पढ़ लेते हैं. फॉर्मूला ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ
given that E has already occurred. इसका फॉर्मूला होगा फेवरेबल आउटकम्स ऑफ F इन E अपॉन आउटकम्स ऑफ E. हमें इसमें से जज करना है उसे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E. ओके, तो अगर इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E. ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स हैं. जस्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द परसेंटेज ऑफ अडल्ट्स हु आर मेन एंड एल्कोहलिक्स इज 2.25%. what is the probability of being an alcoholic given that you are man? Okay, so just understand the approach that I'm using. It will be very helpful for all of the question that we'll be doing next. Okay, so gender broadly here classified into man and woman. So probability of being a man is 1/2 and probability of being a woman is also 1/2. Now a man can be alcoholic or non-alcoholic. A woman can also be alcoholic or non-alcoholic. Okay, so this branch says probability that you are alcoholic given that you are man, probability that you are non-alcoholic given that you are man, probability that you are alcoholic given that you are woman, probability you are not alcoholic given that you are woman. Okay, so what we need to find is this one, probability that you are alcoholic given that you are man, probability you are alcoholic given that you are man. Simple, it's a formula based. What we need to write, probability of alcoholic and man upon probability of being a man. This one is given in the question only in percentage form, and just we need to divide it by 100. So 0.0225 upon 0.5. On solving this, we'll be getting our answer. The next question is, assume that each child born is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? Given that the first part है क्वेश्चन का, जो हमारी कंडीशन है, द यंगेस्ट वन इज़ अ गर्ल, द सेकेंड पार्ट इज एटलीस्ट वन इज़ अ गर्ल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि सबसे पहले या तो गर्ल हो सकती है फर्स्ट चाइल्ड या हो सकता है बॉय. ओके, जो सेकेंड चाइल्ड है वो क्या हो सकता है? अगर गर्ल फर्स्ट चाइल्ड है मतलब कि पहले गर्ल चाइल्ड हो गई और फिर हो गई बॉय चाइल्ड हो गया सेकेंड चाइल्ड, फिर हमारी गर्ल चाइल्ड हो गई. फर्स्ट तो गर्ल चाइल्ड हो चुकी थी, अब सेकेंड जो है वो गर्ल चाइल्ड हुई. फिर क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड था वो बॉय था ही, अब जो सेकेंड चाइल्ड है वो क्या हुई? गर्ल हो गई. अब जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड था वो बॉय था ही, सेकेंड चाइल्ड क्या हो गया? वो भी बॉय हो गया. ओके, यही पॉसिबिलिटी बनती है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें निकालनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि दोनों गर्ल्स हों. मैं इसको इवेंट ए मान लेता हूँ कि बोथ आर गर्ल्स. अब इवेंट ए के अंदर क्या एलिमेंट होगा? सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा कि फर्स्ट चाइल्ड भी गर्ल है और सेकेंड चाइल्ड भी गर्ल है. ओके, अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये इवेंट ए बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट कि यंगेस्ट वन इज़ ऑल्सो अ गर्ल. अब इसको मैं इवेंट बी मान लेता हूँ कि यंगेस्ट वन इज़ गर्ल, मतलब कि जो हमारी फर्स्ट चाइल्ड थी वो गर्ल होनी चाहिए. अब उसके अंदर 2 ही केस हैं, क्या कि जो हमारी फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल है और सेकेंड चाइल्ड है वो बॉय है, और हमारी जो फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल है और सेकेंड चाइल्ड भी गर्ल है. ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट कि यंगेस्ट वन इज़ ऑल्सो गर्ल. इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. अब देखो बी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं और ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? सिर्फ यही आ रहा है, तो इसका नंबर सिर्फ 1 ही है. अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी? 2. सो 1/2 इज़ द आंसर. नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि जो हमारी कंडीशन है वो ये होती है कि एटलीस्ट वन इज़ अ गर्ल. मैं इसको इवेंट सी मान लेता हूँ कि एटलीस्ट वन इज़ अ गर्ल, एटलीस्ट एक गर्ल होगी. अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स आएंगे कि अब देखो हमें इसमें भी गर्ल दिख रही है, इसमें भी गर्ल दिख रही है और इसमें भी गर्ल दिख रही है, तो इसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे. कौन कौन से? कि फर्स्ट गर्ल पैदा हुई, फिर बॉय आया, या फिर फर्स्ट गर्ल आई और दोबारा भी गर्ल आई, या फिर पहले बॉय आया, या फिर पहले बॉय आया देन गर्ल आई. ओके, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 आ गए. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी
कि both are girls given that at least one is a girl. So number of elements in A intersection C upon number of elements in C. अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये तो आ ही रहा है, तो एक ही एलिमेंट है, तो नंबर कितना हुआ 1, और 3 के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो 1/3. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि वी आर actually rolling 2 fair dices and there are 2 events associated. The first event is the numbers on both dice are same. The event B is the number on both dice are even. अगर इसको होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे अगर हमने फर्स्ट डाइस थ्रो करा तो उसमें क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6 पॉसिबिलिटी हैं. और अगर फर्स्ट डाइस पे 1 आया तो इसके भी 6 चांसेस बनेंगे अलग अलग करके कि फर्स्ट डाइस पे 1 आया और सेकंड डाइस पे 1 आया, फर्स्ट डाइस पे 1 आया, सेकंड डाइस पे 2 आया. एंड अगर इसको करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं लेंगे. इसमें हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे. कैसे? अब जो इवेंट ए है वो ये कह रहा है कि द नंबर्स ऑन बोथ डाइस आर सेम. अभी तो बहुत आसान है इसके सैम्पल स्पेस में निकालना. इसको कैसे करेंगे? इसमें बोथ डाइस का नंबर सेम होनी चाहिए. 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6. यही होगा. और इवेंट बी क्या कह रहा है कि द नंबर ऑन बोथ डाइस आर इवन. तो बोथ डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए. मान लो अगर मैं फर्स्ट डाइस पे इवन ले लेता हूँ तो सेकंड डाइस पे भी इवन ही होना चाहिए. तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो फर्स्ट डाइस पे इवन मैं 2 को कांस्टेंट मान रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए. तो 2,2 2,4 2,6. अब मैं फर्स्ट डाइस को चेंज करता हूँ 4,2 4,4 एंड 4,6 एंड 6,2 6,4 एंड 6,6. यही होंगे. So the question says what is the value of PA by B? Means both are same given that both are even. Okay. अब इसका होगा number of elements in A intersection B upon number of elements in B. अब इसके intersection में कौन कौन से आएंगे? एक तो ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा. Okay. So it will be 3 upon elements in B is 9. Next is P A is equal to 1 स्लैश बी. अब ए इक्वल टू 1 मतलब कि सिर्फ इस पर 1 1 होगा. तो इस पर अगर 1 1 होगा तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होगा वो 5 हो जाएगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5 होगी, मीन्स 0 होगी. नेक्स्ट इज पी ए इक्वल टू 2 बी. अब ए इक्वल टू 2 मीन्स 2,2 ही है इसके पास. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी 2,2 ओनली. सो इट विल बी ओनली 1 एलिमेंट एंड टोटल एलिमेंट्स इन बी इज 9. सो 1/9 इज द आंसर हेयर. Study not so important but a quite insightful topic which is multiplication theorem on probability. You can say it's a extension of conditional probability only. We will see how it is. Now there are two events E and F जो sample space में हैं और E intersection F का मतलब है कि event E और event F हो गया. Okay? So probability of E intersection F मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इसको लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है कि पहले event E हो गया तो मैं probability of event E निकाल लूँगा. फिर क्या होगा? इवेंट एफ होगा सच दैट इवेंट ई हो चुका. प्रोबेबिलिटी कि इवेंट एफ होगा सच दैट इवेंट ई हो चुका. तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को लिखने का एक ये तरीका भी हो सकता है. और जो मेरी वर्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ई और एफ दोनों होंगे वो उसको मैं कैसे इक्वेट करूँगा कि पहले इवेंट ई होगा फिर इवेंट एफ होगा सच दैट इवेंट ई हो चुका. इवन दो ये एक ही बात है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई इज इक्वल टू probability of E intersection F upon probability of E. बट या एक इंसाइटफुल चीज़ है ये विच वी विल सी कि ये कैसे काम आती है आगे जाके. अब एक और वे है इसको लिखने का probability of E intersection F को कि अब इवेंट F भी पहले हो सकता है कि probability of event F इंटू probability कि अब इवेंट E होगा सच दैट F हो चुका. ओके तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अब इसको हम वैसे हमने पहले वाला फॉर्मूला पढ़ा था probability of E by F is equal to probability of E intersection F upon probability of F. You can see एक ही बात है बट ये जो वर्डिंग थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड विच विल इवेंचुअली सी कि ये कैसे काम आती है आगे जाके. क्वेश्चंस को समझने में बहुत हेल्प करेगी ये चीज़. ओके एप्लीकेशन थ्योरम पढ़ी. अब इसमें 3 इवेंट्स भी तो हो सकते हैं. अब मान लो probability of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. अब मान लो 3 इवेंट्स हुए. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? अब जो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला था उसको अगर ब्रेनस्टॉर्म करने लगे तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी हेक्टिक फॉर अस. तो प्रोबेबिलिटी कि A, B और C तीनों इवेंट्स हों. अब इसको कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले तो हमारा इवेंट A हो गया, फिर क्या हुआ, फिर हमारा इवेंट B हुआ सच दैट कि A हो चुका,
फिर हमारा इवेंट सी हुआ सच दैट कि ए भी हो चुका और बी भी हो चुका। तो इसको लिखने का ये तरीका है और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, एंड विच वी विल इवेंचुअली प्रैक्टिस। क्वेश्चन सेज अ सिचुएशन इन्वॉल्व्स एन एयरप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई एंड रेडार इज ट्राइंग टू डिटेक्ट इट। रेडार इज अ काइंड ऑफ डिवाइस जो एरियल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी कि जो एयरप्लेन है वो स्काई में है वो 5% है, और वो स्काई में नहीं है वो रेस्ट 95% होगी। अब वो स्काई में है और रेडार उसे डिटेक्ट कर लेगा, वो 99% चांस है। अब वो स्काई में है और रेडार उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ 1% चांस है। इसको थोड़ा एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि सबसे पहले कि वो एयर में है या फिर वो एयर में नहीं है, जो प्लेन है वो एयर में है या एयर में नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी कि वो एयर में है इसका चांस है सिर्फ 5%, यानी कि 0.05। अब वो एयर में है ही नहीं, इसका चांस है 0.95। अब क्या चांस हो सकता है कि वो एयर में है और रेडार उसे डिटेक्ट भी कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो एयर में है भी और रेडार उसे डिटेक्ट भी कर रहा है। वो एयर में है और रेडार उसे डिटेक्ट नहीं कर रहा। अब इसके भी दो केसेस बन सकते हैं कि वो एयर में नहीं है और रेडार स्टिल उसे डिटेक्ट कर रहा है। अब वो एयर में नहीं है और रेडार उसे डिटेक्ट भी नहीं कर रहा। अब इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कि उसे वो डिटेक्ट कर रहा है गिवन दैट वो एयर में है, ये गिवन है हमें कितनी, 99%, यानी कि 0.99। प्रोबेबिलिटी कि उसे वो डिटेक्ट नहीं कर रहा गिवन दैट वो एयर में है, इट विल बी 0.01। प्रोबेबिलिटी कि वो उसे डिटेक्ट कर रहा है गिवन दैट वो एयर में नहीं है, इट इज़ 10%, आई गेस इट इज़ 0.1, एंड दिस विल बी प्रोबेबिलिटी कि वो उसे डिटेक्ट नहीं कर रहा गिवन दैट वो एयर में नहीं है, इट इज़ 0.9। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग क्या प्रोबेबिलिटी होगी द प्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई एंड रेडार डिटेक्ट्स इट। मीन्स प्लेन जो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो एयर में भी है और रेडार उसे डिटेक्ट भी कर रहा है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब हमने वैसे हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, उसमें आता है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी क्रूड वे, इट्स नॉट, बहुत ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा अगर टफ क्वेश्चन आ गया। तो अगर वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी निकालो, बस चेक करो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है और उस हिसाब से हम इसको मॉडिफाई करेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी मीन्स वो एयर में भी है एंड उसे वो डिटेक्ट भी कर रहा है। इट विल बी कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी कि उसे वो डिटेक्ट कर रहा है गिवन दैट ए हो चुका, पहले ये इवेंट हुआ फिर वो दूसरा इवेंट हुआ गिवन दैट कि ये हो चुका। सो इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, सो इट विल बी 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.99। जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। द बी पार्ट इज अ प्लेन इज डिटेक्टेड ऑन द रेडार स्क्रीन, मीन्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसे वो डिटेक्ट कर लिया उसने। अब ऐसा दो केसेस हो सकते हैं कि वो एयर में है तब भी डिटेक्ट कर लिया और वो एयर में नहीं है फिर भी डिटेक्ट कर लिया। अब ऐसे ही इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, हमने इसकी तो निकाल ली कि एयर में है और डिटेक्ट भी कर लिया, इट विल बी जो ये वैल्यू आएगी मैं मान लेता हूँ उसको एक्स, सॉल्व करके निकाल लेना। प्लस एक और होगा प्रोबेबिलिटी कि वो एयर में नहीं है स्टिल उसने डिटेक्ट कर लिया। सो हाउ विल यू फाइंड इट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी की डिटेक्ट कर लिया एंड वो एयर में नहीं है। इसको सॉल्व कर लेना, वी हैव ऑल दी वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज 0.95 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन ए डैश, इट इज 0.9। Solve it and we'll get the answer. Okay. Next is a plane is flying in the sky provided something is detected by radar. Plane is flying in the sky means plane is in the air given that something is detected by radar. Probability of A upon D निकालना है। अब हमारे पास तो D upon A है, A upon D कैसे निकालेंगे? तो इसको अगर लिख के देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन D अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ D, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन। अब हमारे पास ये भी है और ये भी है, कैसे, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा और ये हमारा सेकंड पार्ट था जो हमने सॉल्व करा। जस्ट सॉल्व इट एंड पुट इट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके।